हेलो दोस्तों, अगेन I am Dilip sir here with a new topics for class 12 students. I am discussing as electrostatic energy stored in a capacitor. What will happen when an uncharged capacitor is connected to a potential difference? It starts to get charging, and in case of charging, charge transferred from one plate to another plate. Suppose at an instant, plate 1 and plate 2. Suppose dq dash charge transferred from this to this. What is potential difference? This is simply work done in bringing charge from higher potential to transferring charge from one plate to another plate. V equals to W upon Q dash. So at that instant, what will be potential difference? V dash equals to Q dash upon C. You know, V dash equals to Q dash upon C. This is what? This is potential difference between the plates. At time, जब इस पे चार्ज कितना हो? Q dash हो. Now dQ dash charge transferring from plate 2 to plate 1. And now capacitor start to have charge, acquiring charge, and now it's getting charged. Fully charged कब होगा? Whenever there is no transferring of charge from one plate 2 to plate 1. Now what you will do? How much work done? dW. ये dq चार्ज को ट्रांसफर करने में how much? तो dq dash upon C. This amount of charge या dw equals to v dash equals to ऐसे कर लीजिए v dash into dq dash. dw equals to, as you know, v equals to what? W upon q. So w equals to v into q. दिया. This v dash equals to, आप निकाल चुके हैं यहाँ पे q dash upon c into dq dash. This is elementary work done. This is what? This is elementary work done in transferring charge dq dash from plate 2 to plate 1. Now total work done, integrate elementary work dw, integrate कर लेंगे हम. This is equal to from how much? From 0 to q. कितने चार्ज से कितने चार्ज तक? From uncharged plate था 0 to q. This is fully charged plate. And now 0 to q dash upon c dq dash. This is equivalent to 1 by c बाहर कर लें. q dash into dq dash, lower limit is 0, q. 1 by c, differentiate it, q dash square by 2, 0 to q. This is equal to 1 by c, 2c, q dash, q square minus 0. So what you will get? Q square by 2c. The final expression, this W total work done is W equals to Q square by 2c. This is what? This work done is stored as electrostatic potential energy. यहाँ समझने की जरूरत है. ये जो वर्क डन, जो फुल्ली इस कैपेसिटर के प्लेट को फुल्ली चार्ज करने में how much work is done? This is Q square by 2c. Q square by 2c. This इसी फॉर्मूले में अगर हमने Q स्क्वायर की जगह क्या रख लिया? C इंटू वी का स्क्वायर बाई 2c, तो यू विल गेट हाफ सी वी स्क्वायर. दूसरा एक्सप्रेशन यू के एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर. और तीसरा भी लिख सकते हैं आप U इक्वल्स टू हाफ इंटू सी वी इंटू वी. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हाफ इंटू Q इंटू वी. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस इन प्ले वे. कैसे समझने में आसानी होगी? क्या किया हमने? पहले एक अनचार्ज कैपेसिटर लिया, क्या किया? उसे पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. इट स्टार्ट टू गेटिंग चार्ज. फुल्ली चार्ज हो गया कब? और फुल्ली चार्ज के केस में टोटल चार्ज कितना है? Q, और यहाँ पे है माइनस Q. तो टोटल चार्ज, टोटल वर्क डन हमने निकाल लिया. सर कैसे निकाला वर्क डन? V dash equals to at any instant
when dq charge transferred from plate 2 to plate 1, potential difference is q dash by c. अब नाउ टू वर्क डन, एलिमेंट्री वर्क डन, v डैश इंटू डी क्यू डैश, v डैश की जगह q डैश बाई c रख लिया, इंटीग्रेट कर लिया, टोटल वर्क डन निकाल लिया. वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन निकाल लिया तो एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. दिस वर्क डन इज सर्टेनली stored as electrostatic potential difference between these two plates. और ये एयर प्लेट कैपेसिटर है, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है बच्चे, एयर है, मीडियम. अब हम देखेंगे एक और केसेस देखेंगे जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दें. कोई सपोज ये दोनों प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, इसको हम कहीं कहीं सी नॉट से भी लिखते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर. दिस इज एयर प्लेट कैपेसिटर. अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है K, तो C इक्वल्स टू K इंटू सी नॉट. K टाइम्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज एंड V इक्वल्स टू V नॉट, क्योंकि पीक वैल्यू. एंड दिस इज, इस केस में U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर. तो हाफ K इंटू सी नॉट का स्क्वायर, V नॉट स्क्वायर. व्हाट यू विल गेट, K इंटू सी नॉट स्क्वायर अपॉन V नॉट स्क्वायर. तो हाफ K सी नॉट स्क्वायर, K स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर, V नॉट स्क्वायर. यहां पे पुटिंग हियर व्हाट, K इंटू यू नॉट, K इंटू यू नॉट, यानी एनर्जी इज इंक्रीज बाई K टाइम्स. कब, whenever a dielectric medium having dielectric constant K is introduced in between two plates. So this is the question, energy stored. एनर्जी डेंसिटी अगर आप फाइंड आउट करनी है तो दिस इज वेरी सिंपल मेरे दोस्तों. एनसीईआरटी की जब देखेंगे एक्सरसाइज में तो यू विल गेट U, छोटा u, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज एनर्जी डेंसिटी. सो दिस इज हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम इज A इंटू डी. अगर इसकी प्लेट एरिया A है और दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, तो आप सिंपल वे में आप एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं. और लगे हाथ मैं आपको ये भी बताने से नहीं चूकूंगा, हाफ इंटू सी की जगह रख दें एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और V की जगह रख दें E इंटू डी. क्यों, क्योंकि E इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए पॉइंट, डी इक्वल्स टू E इंटू डी आर upon A into D. What you will get? Epsilon naught A E into D upon वॉल्यूम. D से D काट दें, A से A कट गया, C V स्क्वायर, यहाँ पे V स्क्वायर रख दें, सॉरी गलती हो गई, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल. व्हाट यू विल गेट, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी डेंसिटी. दिस इज एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. E is what, the E is electric field strength. Epsilon naught is electrical permittivity for free space. So this is energy density, formula for energy density. आप अगर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट रख दें तो you will get another formula, हाफ एप्सिलॉन नोट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये काट दें, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोट. दिस इज आल्सो एनर्जी डेंसिटी. सो सिंपली दीज आर द फार्मूलाज. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम एक नई टॉपिक लेकर आएंगे. थैंक यू वेरी मच.